by 4 you have to compel yourself to read all those chapters. I mean, not only one book, yeah, but I am giving you some other books as well. Okay, sir. Okay. Okay, so just we can just go through this chapter number 3, and because we have already completed this chapter. Once they still, because we are waiting for the student. If they don't come, that by the time we can just go through this chapter number 3. Okay, Okay. sir. Yes, sir. Okay, so this is chapter. Actually, the chapter number 2 is related to the microeconomics, or what you can call it, market system or price system. Do you know price system, market system, free market? These are the same things. Okay, sir. Okay, chapter number 2 is something related to free market or market economy or Price mechanism. price mechanism. These are the same thing. Actually, these are all depend on the price. When the price increases, I mean, they start producing. Producers they start producing the goods. So actually, they got the Okay, signal. sir. They got the signal like they feel that the demand for that particular product is increasing. So they start producing and they make profit. Because the main objective of any business is to make profit. Yeah. Okay, they have other Yes, sir. objective as well, but the basic of the initial objective is just to make profit. If the main objective is not making profit, that's not a business. That becomes a non-profit organization, or that is Okay. you cannot call it economic. Actually, this is called social. Are you getting my point? Mhm. Yes, sir. Okay. So we just go through this main point, because we will not be studying each and every point in detail. But if you we will just go through main point, and you have to study at home. And the next class, if you have any issue, you can ask the particular point you don't Okay. understand. Okay. So government in Okay. price mechanism actually failed to produce. Actually, this is the main objective, because the private sector, because they think about the profit only. Just I told you. So they fail to uh, utilize their resources efficiently, effectively, according to society point of view. So government have to intervene it. Government has to intervene it why? Because to correct the market failure. Can you see the screen? Yes, sir. I can. Okay, this is a market failure. Market failure is something that means resources are not utilized according to society point of view, because they utilize their resources according to profit point of view and not for the society point of view. So that is called market failure. And if there is something happen, then what we have to, the government have to intervene it, and that should want to just to correct that market failure. How they do it? By doing that some different ways, like one is regulations. they they make some regulations, like different the different like the control that they start something, and sometimes they stick something, like pollution prohibited, and the access regulation, you cannot put it. They give instruction, they'll give some order, don't do it. Or sometimes what they do, they put some financial intervention. What is that? Instead of telling them, they just put the tax. If you do it, you have to pay this tax, right? If it is good for the society, I mean, good for the environment, you will be getting subsidies. Clear? पाएगा समझ में आ रही है आपकी बात? Yes, sir. अच्छा, Yes, तो sir. ओके. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना, ये क्या होता है, इनके पास इंटरवीन करते हैं, या तो रेगुलेशन के होते हैं, रूल्स बना देते हैं, यू हैव टू फॉलो इट. अच्छा, या फिर ये करते हैं कि ये कुछ फाइनेंशियल का मतलब पैसे से मुताल्लिक है, याद रखिएगा. यानी कि या तो टैक्स लगा देंगे या सब्सिडी लगा देंगे. टैक्स कब लगाएंगे? जब वो समझते हैं कि वो चीज जो है, जैसे डीमेरिट गुड्स है, और वो समझते हैं कि ये प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए. अच्छा, डू यू नो व्हाट आर द डीमेरिट गुड्स? Uh, sir, like drugs. Very good. Demerit good, which is not good for the society, like drugs Yeah. and, yeah, what you can call it in Pakistan, gutka, cigarettes, alcohol.
ठीक है, these are the देखें देखें जो जो ड्रग्स है ना, बेसिकली अगर ड्रग्स को हम कह सकते हैं, लेकिन ड्रग्स जो है ना वो तो टोटली प्रोहिबिटेड है ना, बिल्कुल ही हमने Okay. जैसे हम ड्रग का तो उसको टोटली कर दिया, इसमें टैक्स और पुलिस का तो है ही नहीं, इट इज टोटली नॉट अलाउड बिकॉज दिस वो मैरिट नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस थिंग है ना। कुछ चीजें Yes, sir. अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप जो है ना वो उसको मना तो नहीं करते, इट इज नॉट टोटली प्रोहिबिटेड बट you don't want to produce much, and because for some basic regulations and some rules and regulations, because you know sometimes आप सिगरेट जो पी रहा है उसको मना तो नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी मर्जी पे पी सकता है वो, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना उसको प्रोड्यूस करने की परमिशन तो देती है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है। अच्छा इसकी वजह क्या होती है, मैंने आपको शायद पता है कि मार्केट फेलियर बेसिकली में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, इंफॉर्मेशन की फेलियर होती है। इंफॉर्मेशन फेलियर का मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि आपके पास आप ये समझती हैं कि गवर्नमेंट ये समझती है कि भाई इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, इसको इन्फॉर्मेशन ना होने का मतलब Related to the business, sir? नहीं नहीं नॉट Sorry. रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। Okay, okay. देखिए मेरे साथ गुटखा है, आपको अगर पता हो कि भाई देखिए आप बड़ी शौक से जो है ना फास्ट फूड खाती होंगी, आप पिज्जा खा रही हैं, बर्गर खा रही हैं, लेकिन केचप मायोनीज और सब जब फास्ट फूड खा रहे हैं, बट दैट इज एक्चुअली डीमेरिट गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता हो कि यार ये मेरी जो है ना जो मैं बर्गर है पिज्जा है या मैं दूसरी जो आउट जो आउटसाइड जो मील आप लेती हैं, अगर आपको पता हो कि ये कितनी मेरी बॉडी के लिए मेरी हेल्थ के लिए इतने खतरनाक है, यानी मेरी ओबेसिटी में इजाफा करेगी या मेरी जो है ना वो ब्लड प्रेशर और सब चीज जो है ना बहुत ही इट इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ, ठीक है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये प्रॉपर हो तो आप जो है ना वो कम परचेज करेंगे, तो कभी कभी खाली कोल्ड ड्रिंक है फॉर एग्जाम्पल दिस आल्सो डीमेरिट गुड, ठीक है। तो आपको पता हो कि यार कि अगर मैं ये खाऊंगी पीऊंगी तो मुझसे क्या होगा, अल्टीमेटली मेरी सेहत पर असर पड़ेगा, अभी अगर नहीं पड़ी तो 4-5 साल में इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो अगर आपको ये पता हो तो फिर आप वो नहीं लेंगे। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह ये होती है कि वजह से आप ज्यादा उसको उसको ये जो मार्केट सिस्टम में ओवर प्रोड्यूस हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह हेल्थ और एजुकेशन है, अगर आपको हेल्थ और एजुकेशन के बारे में पता हो कि यार अगर हेल्थ का मतलब ये हुआ कि आप रेगुलरली जाके चेकअप कराएं, ठीक है, आपको पता हो कि नहीं भाई क्या कोई मसला तो ना हो जाए, मैं जाके चेकअप करूं ताकि प्रॉब्लम ना आ जाए, या आपको को पता होगा एजुकेशन कैरियर कितनी इंपॉर्टेंट, तो हर बंदा जो पेरेंट्स जो बेचारे जो वे वो लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए खाली ये एजुकेशन हासिल की जाती है मगर बस एजुकेशन की बहुत दूसरे भी इम्पैक्ट आता है सोसाइटी के अंदर, वो एक अच्छी हारमोनी आती है सोसाइटी के अंदर, जो है ना एक अच्छा जो सोसाइटी डेवलप होती है और आपस में जो क्राइम्स कम से कम होते हैं और जो है ना बहुत सी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। तो अगर सारी इन्फॉर्मेशन हो तो हर शख्स जो है हर पेरेंट जो है अपने बच्चों को कहाँ पे दाखिल कराए स्कूल में दाखिल कराए। इसी वजह से आपको अगर पता होगा कि जो भी एडवांस कंट्रीज हैं लाइक यूएसए और यूरोपियन की कंट्रीज हैं, इसमें आपको जो है ना वो ऑप्शन दिए ही नहीं है कि आप बच्चों को भेजें या नहीं, इट इज कंपल्सरी टू सेंड योर चाइल्ड स्कूल, ठीक है। इफ यू डोंट सेल आई मीन by law the forcefully they can take your child to their school, they think that the child is not the child, it's your child but it is a property of the government, do you know it, आपको ये बात पता Yes, sir. है ना? क्योंकि वो आपके वो कहेंगे नहीं भाई अगर आपको अच्छा वो आपको अगर आप नहीं अगर वो कहें हमारे पैसे नहीं है, बोले आपसे पैसे कौन मांग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे देंगे, इवन इफ यू डोंट हैव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इनको Yes, sir. एजुकेशन लाजमी है, क्यों? उसकी वजह क्या है बेसिकली कि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दिस इज द मेरिट गुड, एवरीवन शुड हैव इट। अच्छा इसके अलावा जो है कुछ हॉस्पिटल भी हैं कुछ कंट्री जैसे कनाडा के अंदर, कनाडा इज ए वेलफेयर स्टेट, कनाडा के अंदर आपको जो है वो सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के, उसमें वो कहते हैं कि अगर आप गरीब हैं या अमीर हैं, अफोर्ड वेदर यू कैन अफोर्ड और नॉट, बट यू विल गेट द टॉप क्लास हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। अब उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर जब ज्यादा जब लोग हर शख्स अगर तो फिर जब प्राइस का जगह उसको अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि प्राइस से हम जो है ना बेसिकली प्राइस का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है, ठीक है, हम जाके पढ़ेंगे कल। Sir, sorry, which effect? प्राइस इफेक्ट, Okay. प्राइस का इफेक्ट जो होता है ना, प्राइस अगर आपका Mhm. है तो देखें समटाइम क्या होता है उनको उसको भी रिड्यूस कर देते हैं, क्या कहते हैं उसे, अपनी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए प्राइस को यूज करते हैं। देखिए अगर हमारे पास अगर गवर्नमेंट के अंदर भी पाकिस्तान में आप समझ लें गवर्नमेंट के अंदर सारे के सारे लोग जो हैं, अगर आपके पास सिर्फ
गवर्नमेंट क्यों? तो those who can afford, even then they cannot get the हेल्थ फैसिलिटीज। समझ में बात आ रही है आपके? मतलब ये कि Yes, मिसाल sir. का तब सब लोग लाइन में लगे हो, चाइना के रशिया के अंदर आपको पता है सिर्फ गवर्नमेंट है। नॉर्थ कोरिया में उससे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जो अफोर्ड करता है, जो नहीं कर सकता, सब एक लाइन में लगे में, जो अगर दे सकते हैं तो फिर भी नहीं जा पाते वो। क्यों नहीं जा पाते वो? क्योंकि उनके पास दूसरी ऑप्शन ही कोई नहीं उनके पास। तो एवरीथिंग प्रोवाइड गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रॉब्लम भी आ जाती है उसमें, बहुत बड़ी लंबी लंबी लाइन और क्यू लगी हुई होती है। ठीक है, निकल Okay, गया। sir. तो इस वजह से क्या करते हैं, गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है कि इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ताकि इसको करेक्ट कर, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव इसका ही है। ठीक है। अच्छा ये फाइनेंशियल, Yes, sir. अच्छा कुछ चीजें जिस गवर्नमेंट समझती है कि इसको अगर ये इनको अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी में वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट को सब्सिडीज दे देगी, हॉस्पिटल को, स्कूल को सब्सिडी देगी ताकि वो कुछ प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir, not now. चला ठीक है। अच्छा एक और तरीका भी गवर्नमेंट का होता है, वो खुद ही प्रोवाइड कर दें। क्या करें? अगर वो कहते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है ना, वो अगर वो जो टैक्सी सब्सिडीज थे वो इफेक्टिवली यूज नहीं हो, तो गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड कर देती है। गवर्नमेंट प्रोविजन, यानी आपका पास देखा होगा पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं। ठीक है, जब वो समझते Yes, हैं sir. कि तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, Okay. बट इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान में के अलावा आप जैसे किसी भी एडवांस कंट्री में आप देखें ना, तो आप देखेंगे कि वो जो प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिलना आसान है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल, और पाकिस्तान में उल्टा है। क्योंकि पाकिस्तान में फैसिलिटी लोग अगर फैसिलिटी प्रॉपर हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो टू द गवर्नमेंट स्कूल। और आपको Yes, sir. आपको शायद पता होगा, अगर आप अगर अप्लाई करें अमेरिका के अंदर या यूके के अंदर, जो स्टेट ओन यूनिवर्सिटीज है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन देयर। एक तो उसकी वजह उसकी ये है कि वहाँ पे फीसें हमारी जो सपोर्ट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कम होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। दूसरी है कि उनकी जो जो एजुकेशन है वो टॉप क्लास एजुकेशन दी जाती है। गवर्नमेंट में क्योंकि वो अफोर्ड अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे जो है वो हाई क्वालिफाइड टीचर हायर करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट खुद Okay. प्रोवाइड कर Yes, देती है। sir. ठीक है। अच्छा अब लेकिन हम जो बुक पढ़ रहे हैं, हम जो एग्जाम देंगे वो देंगे यूके का। ठीक है ना, CIE। तो बेसिकली यूके के अंदर जो बहुत सी चीज को प्राइवेटाइज कर दिया उन्होंने। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर कहीं लिस्ट दी हुई होगी कि उन्होंने अच्छे खासे लोगों को उनको प्रोवाइड कर दिया। चलो वो आप उसमें समझ लीजिएगा, यहाँ पे इसमें दिया है कि नॉट यूके इन द केस इन सम कंट्रीज सच एज यूके दिस इज नॉट लॉन्गर केस। मतलब कि लॉन्गर केस का मतलब है पहले एक जमाने में गवर्नमेंट जो है ना बहुत में सब प्रोवाइड कर देती है, अब मोस्ट ऑफ द थिंग इट इज प्राइवेटाइज। ठीक है ना, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे प्राइवेटाइज क्यों की जाती है, उसके बेनिफिट क्या फायदे होते हैं गवर्नमेंट का। देखिए जब भी इकोनॉमिक्स में कोई चीज फाइनल नहीं है, क्योंकि दीज आर दी आर्ट बेसिकली। ठीक है ना, ये कुछ साइंस नहीं है कि एग्जैक्टली आप जो है ना, अगर इतना आसान होता ना कि अगर एक सोल्यूशन होता तो फिर हम इतने कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो कहते खत्म हो गई बात, एक चीज सीख ले खत्म हो गई। लेकिन अभी आगे जाके पढ़ेंगे आप कि जब एक ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दूसरा मसला आ जाता है, दूसरा सब करते हैं, फिर तीसरा मसला आ जाता है। एक्चुअल दिस हैपन। ठीक है, अभी हम जाके जब बात बता रहा हूँ ना, या आगे जाके इसकी आपको क्लियर होगी ये बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मिसाल दो, छोटी सी मिसाल, आपको शायद बात क्लियर हो जाए आपको। Yes. फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट जो है ना, जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि भाई उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा तो लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, ताकि जब पैसे कम होंगे तो डायरेक्ट इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोग खर्च करने के बजाय सेव करना प्रेफर करेंगे, उससे मार्केट में पैसा कम आ जाएगा, पैसा कम आएगा तो लोग कम परचेज करेंगे, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सही है ना, ये बात Yes, समझ sir. में आ जाए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हमने कर लिया, दूसरा मसला शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास जो है वो आपने जो है ना वो जब इन्फ्लेशन कम कर लिया, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से और टैक्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि आपके पास जो है वो लोग जो है ना वो जब जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, जब प्रोडक्शन कम होगी तो फिर लोग अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड हो गए। जी फायदा, जब प्रोडक्शन कम होगी तो लोगों की जरूरत कम होगी, ज्यादा होगी।
हेलो, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, थोड़ी इशू आ रहा है आवाज में, जी जी कनेक्ट जी, हो रही है। ये आपकी अब साफ आ रही है बिल्कुल। अभी साफ आ रही है आपको? डिस्कनेक्ट। यस सर, मच बेटर। अच्छा अच्छा, चलें। तो ये बताइए कि अगर आपके पास अगर आप इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए आपने जो है ना वो टैक्स बढ़ा दिया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, उससे क्या हुआ कि आपका डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम होगी तो टैक्स बढ़ा दिया और क्या बढ़ा दिया? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट, ओके ओके। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो लोग देखेंगे, आपके पास ज्यादा पैसा होगा ना, डिस्पोजल इनकम ज्यादा को ज्यादा डिमांड करेंगे। इसकी वजह से होता क्या है कि डिमांड कम यस हो सर। जाती है, ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाएगी तो जाहिर है, जब जो सेल करने वाले जब पैसे जब कम होगा, डिमांड कम होगी, तो अल्टीमेट क्या होगा, प्राइस नीचे आनी शुरू हो जाएगी। नीचे आ जाएगी, यस। ठीक है, अब ये हो तो गया, लेकिन इसके जब आपकी डिमांड नीचे हो जाएगी तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन कम होगी। सही है ना? प्रोडक्शन लॉस हो गई, यस सर। जी, जब कम होगी तो उससे क्या होगा, जब ये और लोग को हायर करेंगे या जो जो लोग हैं उनको फायर सर करेंगे? नो, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनहायर करेंगे। बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। मैं आपको बताना हम ये बताना आपको चाह रहा था कि गवर्नमेंट अगर एक का प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ना, तो दूसरा मसला आ जाता है। अब क्या गवर्नमेंट ने जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश की तो क्या हो गया कि वो सर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो अनएम्प्लॉयमेंट गई। बढ़ गया। तो ये बहुत मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड हो। जब वो एम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करती है, उससे जो है ना इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, टैक्स कम कर देती है, डिमांड बढ़ी जाती है। डिमांड तो बढ़ी जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल जाता है, लेकिन दूसरा मतलब इन्फ्लेशन दोबारा आ जाती है। आई गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो बेसिकली दिस इज हैपन। तो यही कहने का मकसद ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट जो भी जो है वो डिसीजन लेती है, इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि सबका लिंक एक दूसरे के साथ है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर, दूसरे को नहीं। तो पूरे सारे साल और पूरी जो है ना पूरी टेन्योर के अंदर गवर्नमेंट इसी को सेट करने में लगी रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी चलती रहती है। ठीक है ना? चले, अच्छा। अब हम ये तो गवर्नमेंट रेगुलेशन करती है। अब तो मिनिमम मैक्सिमम प्राइस भी सेट करती है। देखें, समटाइम गवर्नमेंट क्या करती है कि एक मिनिमम मैक्सिमम प्राइस का भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि देखें, आप ये समझेंगे गवर्नमेंट क्या करती है कि ये प्राइस यहाँ पर है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना आपको? यस सर। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट समझती हैं आप? यस सर। हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे डिमांड सप्लाई बराबर है। अब डिमांड सप्लाई बराबर है, यस। लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि इसका मतलब मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस ही चल रही है, कुछ भी है, लेस $15 समझ लें आप इसको। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि वो क्योंकि वो इसका मतलब इतनी डिमांड है, गवर्नमेंट चाहेगी कि और लोगों तक ये चीज पहुंचे। अगर 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 अच्छा, गवर्नमेंट प्राइस किस चीज से करती है, मेट की करेगी, डीमेट की कम करेगी? गवर्नमेंट जो है तो प्राइस रिड्यूस किसकी सर करने से, मेरिट गुड मेरिट गुड्स की। की। वेरी गुड, शाबाश। तो मेरिट गुड की गवर्नमेंट चाह रही है कि वो क्योंकि वजह क्या है, इसकी प्राइस कम हो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे हो। क्वांटिटी यहाँ पर है ना, तो क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक ज्यादा लोगों तक पहुंचे हो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको कह रही है गवर्नमेंट बाय। देखिए, मैंने आपको, हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, मेन हम पॉइंट क्या हमारा हमारा है, मैक्सिमम प्राइस एंड मिनिमम ये प्राइस। गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, गवर्नमेंट ओके। क्या करेगी कि वो कहेगी कि ये मैक्सिमम प्राइस यहाँ सेट कर लें। आपने बोल दिया कि सपोज करें 10 रुपीज है ये। अगर सपोज करें आपके पास ये आपका ये अगर 15 था, ठीक है, ओहो, अगर ये 15 रुपीज था, ठीक, $15 समझ लें, चले। सर $15 मैक्सिमम प्राइस। हाँ, नहीं, ये वाली मैक्सिमम प्राइस नहीं, ये वाली इक्विलिब्रियम प्राइस थी। तो गवर्नमेंट चाह रही है सर कि आई कैन नॉट पॉइंट। गवर्नमेंट चाह रही है कि प्राइस $10 हो जाए। यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस अगर 15 रुपीज थी और गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको 10 रुपीज में नीचे आ जाए। गेटिंग माय कंफ्यूजन हो रही है? यस सर। अच्छा, देखे ना, ये इक्विलिब्रियम प्राइस समझ में आ रही है आपको? सपोज कर इक्विलिब्रियम प्राइस जो है $15 है पर यूनिट। So और this is the equilibrium point, right? नो नो, I'm looking at the left hand side. Okay. मैं लेफ्ट ये वाले देखें, ये बाद में देखेंगे, ये वाले देखेंगे। इसमें भी कोई मिस्टेक आपको बताऊंगा, इसमें Okay. मिस्टेक क्या है, आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे Okay. इसमें कोई मिस्टेक है इसके अंदर, इस ग्राफ। ठीक है, अच्छा, ये Okay, 15 sir. सपोज करें 15 है ये, ठीक है ना, लेफ्ट एंड राइट में। तो आपके पास ये अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको प्राइस जो है 10 पे कर लें,
तो उसको फिक्स कर देंगे, ये मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देंगे यहाँ पे। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि ये ऊपर नहीं जाएगी, दिस इज द मैक्सिमम यू कैन चार्ज। अच्छा, कैन यू चार्ज लेस देन दैट? No, sir. Yes, you can. Why not? Because this is the maximum price. Maximum means you cannot go beyond this 10 rupees. Okay, yeah, you can. Yeah, But you you can charge less than 10. less But than you that. cannot. But you cannot charge more than 10 because this is the maximum price. Clear? Yes, sir. अच्छा, तो इसका मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि कम पे ताकि लोग ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और कम प्राइस में पहुंचे। जैसे फर्स्ट में तो व्हीट है, शुगर है, ये और किसी नेसेसिटीज वगैरह है ना, पेट्रोल है, तो गवर्नमेंट डजंट वांट टू लीव इट टू द मार्केट फोर्सेस। जी, मैं ये यूज कर रहा हूँ वर्ड मार्केट फोर्सेस। जब भी मार्केट फोर्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जब आपका जो डिमांड एंड सप्लाई होती है, ये कहलाती है मार्केट फोर्सेस। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, मैं जस्ट रिपीटिंग इट। ठीक है, डिमांड और सप्लाई से जो ये क्या कहलाती है, मार्केट फोर्स। कभी टर्म यूज होगी ना मार्केट फोर्सेस, का मतलब होता है कि डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर इसको Okay. ओपन मार्केट छोड़ दी जाए, डिमांड सप्लाई पे छोड़ दी जाए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस वुड बी $15। गवर्नमेंट चाह रही है इसको 15 पे, तो गवर्नमेंट जाहिर है फिर सब्सिडीज देगी, बिना अगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो ये हम बात की बात है। लेकिन गवर्नमेंट जाहिर है चाह रही है कि इस पे फिट कर दे ताकि प्राइस नीचे आ जाए। उस प्राइस को नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे, सब्सिडीज देगी जाहिर है, ये कुछ तो नीचे लेके आएगी। क्लियर हो रही बात? Yes, sir. अच्छा, तो ये मैक्सिमम प्राइस सेट कर दी। अच्छा, अब अगर हम राइट पे आ जाएं, तो राइट पे आप, लेकिन देखिए ये मैं सॉरी इसको कंप्लीट करने पहले, इसका मतलब जब आपके पास यहाँ पर आएंगे तो फिर आपके प्राइस नीचे आएगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस, तो सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि सप्लाई कहाँ पर आएगी, Q1 पे आ जाएगी। लेकिन इस प्राइस के ऊपर जो डिमांड होगी वो कितनी होगी, Q3 होगी। अब ये वाला जो पोर्शन आपका है, ये वाला जो पोर्शन, इतनी क्वांटिटी जो यहाँ से यहाँ तक है, सपोज करें अगर ये 100 है, ठीक है, और ये 150 है, तो गवर्नमेंट इस जो जो ये 50 वाले जो पोर्शन है, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको या तो वो करेगी, सब्सिडीज देगी, या कुछ ना कुछ जो खुद प्रोवाइड करेगी। देयर आर मेनी वे टू प्रोवाइड टू फिल दिस शॉर्टेज। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, चले, ये तो हो गई हमारी मैक्सिमम प्राइस। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा है मैक्सिमम प्राइस, तो ये देखें, अगर हमने प्राइस यहाँ पर रखी है मैक्सिमम, तो अगर हम इसको मैक्सिमम प्राइस सपोज करें, तो इसका मतलब मैक्सिमम प्राइस अगर यहाँ पर है, तो इससे नीचे तो आ सकते हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि यू कैन नॉट Yes, गो। sir. Can charge it. तो You अगर cannot मैं charge above than that. above than that, तो is it correct or wrong? Maximum is written, I mean, if what they have written in the book, is it correct or wrong? क्योंकि मैक्सिमम प्राइस अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर सेट कर दी है, तो फिर तो इफेक्टिवनेस ही नहीं रहेगी, तो मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे मिला है, प्राइस मिल रही है, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो सेट की है मैक्सिमम प्राइस, उसका तो कोई यूज ही नहीं है। Yes, sir. Maximum price should always be, I think, downwards. वेरी Like गुड, a वेरी गुड, downwards बिल्कुल equilibrium. Yeah. जैसे आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है आपको, क्योंकि Yes, सो sir. सो दैट यू Yes. कैन नॉट गो अप, बिकॉज अच्छा, इससे नीचे जो फायदा होगा, ये आप करेंगे मिनिमम प्राइस, बिकॉज यू वांट टू ब्रिंग अप टू अप, तो ये मैक्सिमम प्राइस इज रॉन्ग, इट हैज टू बी A minimum price. मिनिमम प्राइस। ठीक है, तो ये आपकी जो मैक्सिमम Yes. प्राइस यहाँ पे लिखी है वो गलत है, ये क्या है, मिनिमम है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम का मतलब Yes. क्या हुआ कि यहाँ इससे नीचे नहीं आ सकता है, तो जाहिर है, तो अगर ये मिनिमम प्राइस है, तो यहाँ पे नहीं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, Okay. तो कुछ कुछ सप्लायर को गवर्नमेंट चाहती है कि भाई प्राइस लेगा ताकि उनको अच्छी चीज मिल सके। सब टाइम जो है ना गवर्नमेंट जो है वो उनको जो है ना वो अच्छी से सप्लाई कर रही होती है, सप्लाई ज्यादा हो रही है तो गवर्नमेंट समटाइम खुद परचेज कर लेती है, या देयर आर मेनी वेज टू ओवरकम दिस एक्सेस सप्लाई। यहाँ तक क्लियर का मतलब तो नहीं है? No, sir. चलो ठीक है, ये नॉर्मली जो ना ये अच्छा, ये आपके ख्याल में ये मैक्सिमम प्राइस सेट करें किस किस्म गुड्स के लिए कर सकती है गवर्नमेंट? Sorry, sir. ये किस किस्म की आपकी जो गुड्स होंगी जिसको आपके लिए ये ऊपर लेके जाएंगे, मैक्सिमम प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे? Demerit goods. वेरी गुड, क्योंकि उनकी प्राइस अगर हाई करेंगे तो पीपल लेस परचेज करेंगे। वेरी गुड, If they शाबाश, don't. वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है ना, कि गवर्नमेंट ताकि डिमेरिट गुड्स की आप करेंगे कि ऊपर तक लेके जाए ताकि इनकी प्राइस ज्यादा हो जाए। बेसिकली ऊपर जाने का होगा कि आपकी डिमांड जो पहले यहाँ पर थी, ये क्यू क्यू इक्विलिब्रियम थी, डिमांड कम होकर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है,
तो ये अभी जब मैं आपसे Yes. इससे पहले मैं आपसे कहता कि प्राइस का भी बड़ा इम्पैक्ट आता है, प्राइस के थ्रू भी जो जो है ना वो डिमांड को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चले, वेरी गुड। चले, मेरे ख्याल है ये 2 बच्चे अभी तक आए नहीं है, तो हम चलो चैप्टर 3 पूरा कर लेंगे, क्विकली करते हैं। Okay. चलो, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना, कोई इशू नहीं है? No, sir. वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर नीचे जाएं, यहाँ पे हम जाके देखें। अच्छा, अभी टैक्सेस आ गया। अब हम टैक्सेस पर आते हैं। टैक्सेस कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बड़ी इजी है, सिंपल है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है डायरेक्ट जो आप गवर्नमेंट को देती है। इनडायरेक्ट टैक्स you don't give directly to the government, but you still you pay it. फॉर एग्जाम्पल, आपका डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कौन सा होता है? आपका जो है ना, ये आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, आपका जो है वो क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर कोर्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, या इनहेरिटेंस टैक्स है। ये सारे के सारे टैक्स क्या होते हैं? देखिए कॉर्पोरेशन, देखिए इनकम टैक्स है। अच्छा, कॉर्पोरेशन टैक्स भी आपका है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस होता है उस पर आप टैक्स देती है, लेकिन यू हैव टू Okay. बी वेरी क्लियर, बट नॉट एवरी बिजनेस हैज टू पे टैक्स। ये बहुत क्लियर समझ लीजिएगा। आपका अगर बिजनेस आपका सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप है, तो आपके बिजनेस पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो लोगों की Okay. इनकम है उस पर टैक्स होती है। लेकिन कॉर्पोरेशन Okay. टैक्स सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज पे होती है, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड पे। ये याद रखिएगा, ठीक है? Okay, sir. देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अच्छा, नेशनल इंश्योरेंस भी जो है ना, ये भी कंट्रीब्यूशन भी आपका सॉर्ट ऑफ टैक्स भी है। अच्छा, पाकिस्तान में ये नहीं है, लेकिन ये बेसिकली क्या होती है, गवर्नमेंट जो है ना नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन लेती है तमाम एम्प्लॉइज से, जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, और जो जो एम्प्लॉयमेंट दोनों मिला के इनको देते हैं। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट शायद नहीं होगा इसका ना, इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस का। ये बेसिकली जो Okay. यूके के अंदर एडवांस कंट्रीज में क्या होती है कि मिसाल के तौर पर जो है वो कुछ परसेंटेज होती है या कुछ अमाउंट होता है, जो जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं वो पे करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी जगह जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी सैलरी से अगर 100 रुपीज जो है वो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली तो उनको पे नहीं कर रहा ना, लेकिन बेसिकली जो है ना वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट कहती है कि भाई 100 रुपीज जो है ना वो उससे काटें एम्प्लॉयड लोग से, और जो बिजनेस है वो 100 रुपीज वो भी मिला है। ठीक है, क्योंकि वो भी तो बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है ना, तो दोनों मिला के 200 रुपीज विल बी गोइंग टू दी गवर्नमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? No, sir. I didn't get this point. चलो दोबारा बताता हूँ। देखिए, आपके पास गवर्नमेंट ये जो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन बेसिकली एडवांस कंट्रीज लाइक यूके में ऐसा होता है कि जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं उनसे टैक्स लेते हैं। कहते हैं कि आप कुछ कुछ छोटा सा अमाउंट होता है, मिसाल के ऊपर 50 पाउंड या 25 पाउंड 30 पाउंड, इसका कुछ अमाउंट लेते हैं। वो जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है, और उतना ही अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर जो है, यानी जिसने इसको जॉब दी हुई है, वो उतना ही अमाउंट अपना भी मिलाता है वो, और फिर टोटल मिला के यानी कि 30 रुपीज अगर उसने एम्प्लॉय से जो है वो डिडक्ट किया है, तो एम्प्लॉयर भी 30 मिलाएगा, और टोटल 60 पाउंड जो है इट विल गो टू दी गवर्नमेंट। Government. Okay. अच्छा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इसका गवर्नमेंट करती क्या है? बेसिकली जो पैसा होता है इससे जो 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 लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको ये पेमेंट किए थे। अब ये दिल्ली रहते हैं, फिर जो लोग अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके खर्चे के लिए, या फिर जो जो बेचारे जो जिनकी हाउसिंग जिनके पास नहीं है उनको करने के लिए, या जिनको खाने पीने को नहीं है Okay. उनको देने के लिए, तो ये इनसे लेती, जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनसे लेकर अनएम्प्लॉयड की हेल्प की जाती है। Okay. Okay. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, क्योंकि ये डायरेक्टली दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट बाय द टैक्स पेयर। टैक्स पे जो पे कर रहा है ना वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को, इसमें से क्या कहलाती है? ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली होता है कि जो आप डोंट पे डायरेक्टली, बट यू पे इनडायरेक्टली, जस्ट लाइक सेल्स टैक्स। जैसे यहाँ पर आप वो, आपका सेल टैक्स है, ठीक है ना? आपका जो आपने अगर आपने कभी परचेज की होगी, कभी रेस्टोरेंट में आप गई हो तो आपने देखा होगा कि जब बिल आता है, तो मिसाल के तौर पर आकर आपने 2-4 लोगों के साथ गई हैं और एक आपका जो है ना वो 7,000 रुपये बिल आया फॉर एग्जाम्पल, तमाम चीजें आपने चीजें, टोटल 7,000 प्लस टैक्स 17 और 18%। Yes, sir. तो जो टैक्स होता है Yes, sir. बेसिकली वो होता है सेल्स टैक्स, और ये बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स।
ठीक है, तो वो टैक्स जो लगता है वो फिर बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन वो आप किसको देती हैं? आप देती हैं इसको Yeah, जो to the company or to जो रेस्टोरेंट होते हैं, और दे पे टू द गवर्नमेंट। क्लियर है? okay. तो ये Yes, sir. इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा देखें, इसमें देखें डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डायरेक्ट टैक्स वन टैक्स द इनकम ऑफ पीपल एंड फर्म कैन नॉट बी अवॉइडेड। Yeah, इसको yeah. अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या इनडायरेक्ट टैक्स अवॉइड कर सकते हैं? अगर आप परचेज ही नहीं करेंगे जाहिर है, तो फिर टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। Yeah. Okay. ठीक है, लेविड ऑन द गवर्नमेंट, ये टैक्स एंड सर्विसेज आपको देना है। गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती है ना, उस पर टैक्स होता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, अच्छा sir. अच्छा, एक चीज यहाँ पर मिस कर गए थे, हम उसको पढ़ते हैं। वो क्या चीज है? वो बेसिकली आपका कैनन ऑफ टैक्सेस, ये रह गया था इसके अंदर। कैनन ऑफ टैक्सेस का मतलब होता है, कहाँ चला गया? Sir, I think वो नीचे था. जी जी Like नीचे। it is Adam Smith's जी one. जी, यहाँ पर Yes. कैनन कैनन टैक्सेस बेसिकली क्या मतलब होता है कि ये क्वालिटीज आप कह सकती हैं, ये करेक्टरिस्टिक कहते हैं, क्राइटेरिया कह सकती हैं। ठीक है ना, ये एक वो है, एडम स्मिथ ने ये दिया था। ये एडम स्मिथ जो है ना, एडम स्मिथ बेसिकली कौन है? ये बाबा इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। इन्होंने जो है ना वो Okay. सब उसके बाद वाले सब उसके बाद आए। तो ये एडम स्मिथ बेसिकली मेन पुराने था। इन्होंने जो है कहा था कि भाई टैक्स जो हो, अब देखें आपको लॉजिकल समझ में भी आ रही है कि इसमें क्या होता है, इक्वल टेबल। देखें, इक्विटेबल और इक्वल में फर्क है। याद रखिएगा, इक्वल अलग है, इक्विटेबल अलग है। इक्वल का मतलब है मिसाल के तौर पर हर एक से बराबर टैक्स ले रहे हैं, तो क्या होगा, जब इनकम कम हो ज्यादा हो, वो कहलाएगा इक्वल टैक्स। लेकिन इक्विटेबल का मतलब होता है कि जो ज्यादा अफोर्ड करता है वो ज्यादा टैक्स रेट पे करे। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ये जब ज्यादा और कम टैक्स की बात करते हैं, हम रेट की बात कर रहे होते हैं, याद रखिएगा। कुछ चीजें छोटी छोटी बातें होती हैं, आपके बाद में जो है ना एमसीक्यू के अंदर और पेपर के अंदर बहुत हेल्प आउट करेंगे, वरना कंफ्यूज थोड़ी सी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए स्टार्ट हो Okay. जाती है, मिसाल के तौर पर मेरी इनकम 1 लाख है, मैं 20% टैक्स दे रहा हूँ। 1 लाख का 20% जो है ना वो 20,000 हुआ। आपकी इनकम 10 लाख है, तो आप भी 20% दे रही है, लेकिन आप जो है ना 20,000 दे रहे हो, तो आप 2 लाख रुपए दे रही हैं, तो आप तो टैक्स ज्यादा दे रही हैं, तो कम थोड़ी है ये। Yes, sir. तो हमारा और आपका टैक्स तो बराबर ही हुआ। अगर बराबर के हिसाब से, रेट के हिसाब से बराबर है, लेकिन अमाउंट Okay, डिफरेंट sir. है। तो whenever we talk about the taxes, actually they are talking about the rate of tax। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। Okay. Yes, sir. हाँ, तो ये जो रेट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। अमाउंट तो जाहिर है, अगर एक ही अमाउंट हो तो अभी हम आगे जाके और पढ़ेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये इक्विटेबल हो, यानी कि दोज हु कैन अफोर्ड शुड पे मोर। जब whenever they are talking about pay more में, they have to pay more of more percentage of their income। याद रखिएगा इसको। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक का मतलब हुआ कि इकोनॉमिक का मतलब होता है कि आपके पास जितने जो टैक्स की कलेक्शन है, उसकी कॉस्ट जो है ना वो टैक्स से ज्यादा ना हो जाए। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने तब हम बहुत सारे ऑफिस खोले, लोगों को हायर किया ताकि टैक्स कलेक्शन के लिए, तो हम जो है वो बता सकें, कर सकें। उन्होंने 2 करोड़ रुपए लगा दिए, और जो टैक्स कलेक्शन है वो आपके पास जो है ना 2.25 करोड़ है, तो बेकार हो गई ना फिर वो। मतलब आपने Okay. जितने कलेक्शन की थी, तो वो उससे ज्यादा खर्चा कर दिया आपने। तो बहुत ज्यादा खर्चा ना हो, और मिसाल के तौर पर अगर 2 करोड़ का खर्चा किया और आपने 2.5 करोड़ की, तो 50,000 मतलब आपने 50 लाख रुपए जो है ना वो टैक्स लिया बेसिकली, तो 2 करोड़ तो ज्यादा खर्च ही कर दिया आपने। तो ये कम से कम खर्चा हो, ताकि वो इजीली इकोनॉमिकल हो। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? Yes, sir. इकोनॉमिक का मतलब तो आपको पता ही है ना। इकोनॉमिक का जैसे जहाज में इकोनॉमी क्लास होती है या ट्रेन में इकोनॉमी क्लास होती है, उसका मतलब ये होता है कम से कम खर्चे के अंदर बस गुजारा हो जाए। Yes, sir. ठीक है ना। तो मिसाल के तौर, अगर यहाँ से अगर आपको अमेरिका जाना है, तो बस किसी तरह कम से कम खर्चे में हो जाए, तो कम से कम तो इकोनॉमी में हो सकता है। ठीक है। Okay. लेकिन अगर इकोनॉमी के बार अलावा बहुत डिफरेंट क्लासेस हैं, इकोनॉमी से आपने जो है ना फिर जो है ना वो बिजनेस क्लास ले लिया या आपने फर्स्ट क्लास ले लिया, तो वही जो आपका जो $1,000 का टिकट है, वो 4,000, 5,000, 10,000 तक आपका चले जाता है डॉलर का। ठीक है। लेकिन आप बोले बस बस कम से कम खर्चे में जा, तो कम से कम सिर्फ इकोनॉमी का होता है, उससे कम तो होते ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? Okay. तो जब भी इकोनॉमी का, Yes, तो sir. बेसिकली मिनिमम कॉस्ट समझ लेते हो आप। ठीक है। अच्छा भैया, दूसरे का ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि हर एक को पता हो कि वो क्या टैक्स पै रहा है, कितना टैक्स पै रहा है, इसको टैक्स ज्यादा दे रहा है, कम दे रहा है, तो उसको क्लियरली पता हो।
ऐसा ना हो कि बोले कितना टैक्स मुझसे ले लिया, वो परेशान हो जाओ, बोले कितना मुझे टैक्स ले लिया, क्या ले लिया। तो उसको पता होगा, टैक्स पेयर शुड नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर पेइंग, कितना अमाउंट दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसका क्या रेट है, क्या परसेंट, उसकी चीज पूरी चीज पता हो उसको पूरी पूरी, ताकि वो खुशी से टैक्स पे करे। वरना बोलेगा यार दूसरा बंदा मेरा बड़ा ना, वो तो इतने लाख कम, उसको टैक्स इतना कम दिया, मुझे ज्यादा दे दिया। तो ट्रांसपेरेंट हो तो उसको सबको पता हो कि कौन कितना टैक्स दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, कम दे रहा है। ये बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा ठीक है। एक और बात, कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट को ना टैक्स पे करना उसको आसानी हो, ये ना कि वो हाँ. टैक्स के लिए परेशान हो जाए कि यार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हों। अब जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा, दे मेकिंग इट इजियर एंड इजियर, और आप आसानी के साथ टैक्स पे कर सकते हैं, ताकि Yes. लोग, पाकिस्तान में टैक्स कम देने की कोई एक वजह जो है ना, ये भी है। दिस इज नॉट द ओनली रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजंस, कि वो कि उनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसकी वजह से जो होता है ना, वो क्या होता है कि जो टैक्स, जो इनकम टैक्स वाला जो ना, सब एक्सप्लॉइट करता है उनको। क्लियर होगी बात? Yes, sir. अच्छा, तो ये कैनल टैक्स का बेसिकली मतलब, कैनल का तो उसको बोलते हैं ना, जो तोप को बोलते हैं ना, लेकिन कैनल ऑफ टैक्सेस Mhm. बेसिकली ये कह रहे हैं कि एडम इसके मतलब क्राइटेरिया फॉर गुड टैक्स। ठीक है, क्लियर है? Yeah. अच्छा, Yes, sir. डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये देखें, ये गवर्नमेंट का बजट है। बजट आपको पता है क्या होता है? Yes, sir. It is a kind of the expenses you have to spend. वेरी गुड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, ऐसे ही है। Yeah. तो अगर हम बजट की बात करें, गवर्नमेंट, अगर हम पाकिस्तान के बजट की बात करें, किसी कंट्री की, यूके के बजट की बात करें, तो जो गवर्नमेंट के कितने रेवेन्यू होगा और कितना एक्सपेंडिचर, वो क्या बजट कहलाएगा। बेसिकली इट इज Yes. फाइनेंशियल प्लान। Yeah. जो प्लान होता है ना, उसको फाइनेंशियली अगर आप उसको करें तो वो कहलाता है बजट कहलाता है। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट को है ना, कि आपके पास है ना, सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के। ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे तो ये सारे के सारे यूके के रेवेन्यू है। लेकिन जो हम लोग तो पे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को तो सारी देखें कितनी 19% को नेशनल इंश्योरेंस दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन 30% इनकम टैक्स होता है, और कितना टैक्स लिया जाता है देखें, यानी कि 57% यहाँ पे लिखा हुआ था कि सारा का टैक्स कितने दे पे करते हैं। यानी कि तो ये तो 57% टैक्स बहुत ज्यादा है ना उसके अंदर, यूके के अंदर। आपने सैलरी आपके पास आई, आपका पैसे पहले ही कट गए, ये आपके इंश्योरेंस कटा है। ठीक है, जो इनकम है उस पर इनकम टैक्स भी कट गया आपका। ठीक है, आप तो ये पे करिए, उसके बाद जब आपने कुछ परचेस करने जा रही हैं, तो ये भी टैक्स पे कर रही हैं 17%। पाकिस्तान में भी तकरीबन 17% ही है। तो ये सारा का सारा टैक्स इसलिए बहुत कम, डिस्पोजल इनकम की कम बनती है। Okay. ठीक है। अच्छा। Yes, sir. अच्छा, और अब ये एक दो चीजें, ये टैक्स, एड वैलोरम टैक्स क्या होता है, स्पेसिफिक टैक्स Coloring. क्या? ठीक है, एड वैलोरम टैक्स बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली परसेंटेज, जब ये परसेंटेज में टैक्स दे रही है ना, एड वैलोरम टैक्स कराएगा। वेरी सिंपल। Okay. और जब पर्टिकुलर अमाउंट है, जैसे मेरे साथ 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 2 पाउंड, 6 पाउंड, 30 पाउंड, तो ये स्पेसिफिक है, बेसिकली वो यूनिट में होता है। यानी पर लीटर अगर 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 आप वो दे रही हैं पेट्रोल के ऊपर, आपने टैक्स दिया 2 रुपए, 2 रुपए टैक्स है, तो बेसिकली स्पेसिफिक हो जाएगा। यही अगर परसेंटेज मिले तो जो एड वैलोरम टैक्स कहलाता है। मेक Ad इट वेट। valorem. ठीक है ना, इसको एड वैलोरम टैक्स को परसेंटेज टैक्स समझ लें आप। ठीक है, Okay. चले। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर आप आएगी, वो आएगी, अच्छा ये याद रखिएगा कि जब भी आपके पास टैक्स लगेगा, ये ग्राफ तो आपको आते हैं ना, प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? No, sir. I'll understand it. अच्छा, वेरी गुड। Price देखिए, equilibrium, price balance. वेरी गुड। अब देखिए, जब भी आपके पास एक बिल्कुल कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक हैं, वो हमेशा ही होंगी, इसी तो नहीं होंगी। उसमें जो है ना, वो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिसाल के तौर पे, जब भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये देखेंगे डी और एस है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये नहीं होगा, ये होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम कौन सा, ये वाला है। जब भी टैक्स लगेगा, याद रखिएगा सप्लाई कम दर पे चले जाएगा। ठीक है, और जब भी आपके पास सब्सिडीज दी जाएगी, तो वो याद रखिएगा, सब्सिडीज जब भी दी जाएगी तो बेसिकली वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। Right word shift हो गया. बस याद रखिएगा, ठीक है ना। और डिमांड वहीं की वहीं है, सही है ना, क्लियर है, ये हमेशा होगा। Yes, sir. और आपने शायद नोटिस भी किया होगा। अच्छा, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं इंसिडेंस पढ़ रहे हैं, इंसिडेंस का क्या मतलब होता है? इंसिडेंस का बेसिकली मतलब होता है कि कौन कितना बेयर करेगा टैक्स। तो ये जो पॉइंट है, ये भी आप समझ लें। आप, आपका ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है ना, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब आपके पास टैक्स लगा, तो आपके पास देखिए ये वर्टिकल डिस्टेंस टैक्स कहलाता है।
ये पर यूनिट टैक्स है, याद रखिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है बेसिकली जिसको या P1 से P3 तक जो भी आपका अमाउंट बन रहा है ये सब क्या है, ये आपका ये पर यूनिट टैक्स। जब भी ग्राफ बनेगा तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये वो कहलाएगा पर यूनिट टैक्स। समझ में आ रही है बात? यस सर। क्योंकि अभी जब आप एमसीक्यू करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा बने हुए तो परेशान हो जाते हैं, टैक्स कौन सा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। मेक इट सिंपल, जो भी आपका जब टैक्स लगेगा और ग्राफ आपका लेफ्ट पे चले जाएगा तो जो वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना यहाँ से यहाँ तक का ये उसके बाद इसको यहाँ ले जाए, ये वाला जो अमाउंट है वो सारा का P1 से P3 तक क्या है, ये आपका टैक्स है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर P1 जो थी ना वो थी 10 रुपीज, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस सपोज करें 6 रुपीज थी, ठीक है ना, और ये 4 रुपए थी। अब मुझे बताएं कि आपके पास जो टैक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितने रुपए? सर ओवरऑल टैक्स जी ये जो टैक्स लगा ये देखें आपके पास ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया तो टैक्स कितना है? सर 10। नहीं, टैक्स 10 नहीं। देखें आपके पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये तो 10 रुपीज तो प्राइस है। और इसकी वजह से जो पहले प्राइस जो यहाँ से यहाँ वाला अमाउंट कितना है, T2 कितनी है, 4 रुपए। 4। हाँ 4 है। तो व्हाट इज द टैक्स? I told you this is the difference between from here to here, this is tax. तो ये तो 10 रुपए। Okay, that would be 10 minus 4. Exactly, very good. This is what I wanted to know you. 10 minus 4 और ये आपके पास कितना आ गया, 6 रुपए टैक्स है। तो $6 ये टैक्स ये आपको यहाँ से आकर डिस्टेंस 6 रुपए। क्लियर हो गई? अच्छा, अगर आपसे मैं अगला सवाल करूं कि अगर आपसे पूछूं कि चलो 6 रुपए तो टैक्स हो गया, मुझे ये बताएं कि आपके पास टोटल टैक्स कितना होगा? टोटल टैक्स तो कैसे निकालेंगे? 10 प्लस 4? नहीं, तो ये देखिए, ये तो 1 यूनिट का हो गया ना, इसको 10 को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा। मिसाल के तौर पर क्वांटिटी अगर ये 100 है, ओहो ये क्या हुआ, अगर आपकी क्वांटिटी ये ना आपके अगर ये वाला अमाउंट जो अगर है ये वाला देखें, अगर आपके पास जो है ना वो इसके देखिए हमेशा तरीके जो एक तो आपने आज सीखा ये कि जो वर्टिकल डिस्टेंस वो क्या होता है, टैक्स होता है, पर यूनिट टैक्स होता है, यानी कि ये माइनस ही आपको टैक्स मिल जाता है। और आपसे पूछा जाए टोटल टैक्स कितना है, गवर्नमेंट को टोटल कितना है, तो आप बताएंगे कि ये 6 रुपीज तो ये आ गई और मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी। अगर मिसाल के तौर अगर आपके पास ये जो क्वांटिटी थी मिसाल के तौर पर ये अगर ये 100 थी, ठीक है ना, ठीक है ना, और ये आपके पास जो है ना 120 थी, ठीक है, तो टैक्स तो आपका यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है ना, और यहाँ से लेकर तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ये जैसे 100 है ना ये, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास टोटल जो है वो टैक्स जो है वो कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। अगर ये 100 है तो 100, अगर ये 100 टन है तो ये आपका जो भी है वॉट एवर इट इज पर यूनिट टैक्स आपका है। अगर ये 100 मिलियन है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 600 मिलियन टैक्स हो जाएगा। ये बात क्लियर है? एक छोटी सी बात थी, मैंने आपको इसमें बता दी। इसी तरह आप जो है ना वो भी सब्सिडीज भी कैलकुलेट कर सकती हैं। जब आपके पास ये अमाउंट यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है ना, यहाँ आएगा तो ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना ये आपका वो हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट से तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका एक यूनिट का टैक्स सब्सिडीज आ जाएगी, और टोटल आपका जो यहाँ से अब जो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से तो यू विल गेट टोटल सब्सिडीज। ये बात क्लियर है? तो ये आपने यस सर ये कैलकुलेट करना सीख लीजिए, एमसीक्यू में एक अच्छा खासा सवाल आ रहा था। ये बात क्लियर हो गई? कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? नो चले चले शाबाश, ये हो गया आपका, मैं बता दूं। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, अच्छा ठीक है, ये अब इसी तरह अदर टैक्सेशन इश्यूज आ जाते हैं, इसको आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरे आए नहीं तो मेरा ख्याल, अच्छा एक चीज करते हैं बस खत्म कर दें, असल में मेरी 11 बजे दूसरी क्लास है,
मैं आपको सिर्फ ये बता दूं खाली Okay. कि प्रॉपर Sir, and I wanted to ask, sorry, sir. जस्ट Sir, प्लीज। will you send any notes of economics as well, like brief notes, or we have to make it from the book? नहीं, एक्चुअली आई विल गिव यू सम, Okay. आई विल शेयर यू द होल बुक, आई मीन व्हिच हैज सो मेनी टॉपिक्स आर गिवन, आई मीन स्पेसिफिकली वेरी स्मॉल शेप, आई मीन Okay, sir. व्हाट यू कैन कॉल इट ब्रीफ नोट्स, ठीक है, Yeah, और sir, brief notes. ब्रीफ नोट विद द एमसीक्यूज, ठीक है, उससे Okay, okay. लेकिन बहुत सारे हैं वो शायद इतनी ना, लेकिन आखिर कोशिश करिएगा एंड वाले आप कर लीजिएगा, तो कम से कम 15 आप कर लें, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, Okay, ठीक है। तो अभी okay, मैं okay, okay. अभी मेरा जो जो फोकस है ना वो बेसिकली कंटेंट को है, फिर इसको कंटेंट के जो है ना फिर साथ साथ जब दूसरी हम करेंगे ना, टोटल वी हैव ओनली 5 चैप्टर इन द बुक, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो उसकी परेशान ना कि मैं आपको, मेरे पास बहुत मटेरियल है, मैं आपको मुख्तलिफ किस्म की बुक भी शेयर कर सकता हूँ। एक आईबी की बुक मेरे पास है, सॉफ्ट कॉपी से मैं शेयर कर दूंगा। उससे बेसिकली आपको देखें, याद रखिएगा, वो 700-800 पेज की अगर बुक है तो यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग ना, बस समटाइम टॉपिक आपको यहाँ कंफ्यूज कर रहा है, आपने वो टॉपिक वहाँ सर्च में डाला और उसको पढ़ लिया, उसको बहुत आसान सा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। Okay. क्योंकि देखिए ना, अब आप ए लेवल्स में है, तो लेवल्स में आपको अभी से आपको थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, यू शुड यूज मोर देन वन बुक, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो Yes, sir. आपको 6-8 किताबें यूज करनी पड़ेंगी इस टॉपिक के लिए, ठीक है। Yes, sir. तो थोड़ा सा आपको जो है ना वो, अच्छा इसके मटेरियल की फिक्र ना करें, बहुत चीजें मेरे पास है, बहुत चीजें आपको मैं शेयर करता रहूंगा, पढ़ते रहिएगा। पर आपके पास मैं Okay. समटाइम ज्यादा शेयर इसलिए नहीं करता कि बच्चे बोले और फील ना करें यार कि मैं इतना सारा, तो मैं हाथ पाँव छोड़ दें बिल्कुल, इस वजह से मैं ज्यादा Okay. शेयर Okay. नहीं करता, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आई कैन गिव, आई विल गिव यू, ठीक है। Okay. अच्छा, ये आखिरी चीज Okay, खत्म sir. करते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। Okay. Okay, sir. अच्छा, लेकिन ये 3 चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको जो है ना बाकी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा, और इसमें जो Yes, कंफ्यूजन sir. है वो पूछ लीजिएगा मुझसे, क्योंकि अभी अगली क्लास में Okay. मेरे ख्याल है बाकी बच्चे भी होंगे ना, तो फिर हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Okay. Okay. Yeah, sure. Okay. अच्छा, अब देखिए प्रोपोर्शन टैक्स, बेसिकली प्रोपोर्शन प्रोग्रेसिव टैक्स, ये क्या चीज होती है, बेसिकली इसका नाम क्या, प्रोपोर्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी 20%, तो 20% ये प्रोपोर्शन टैक्स कहलाता है, हर एक का सेम प्रोपोर्शन है, ये देखिए रिमेन द सेम। अब देखें, हालांकि देखें इनकम टैक्स पेड इन द टैक्स इज रिमेन द सेम, हालांकि देखें कितनी उसकी अजीब सी बात है, टैक्स के सेम थोड़ी, पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर मेरी 1 लाख रुपए इनकम है तो मैं अब 20,000 रुपए टैक्स दे रहा हूँ 20%, आपकी 10 लाख है तो आप 2 लाख रुपए, आपकी 1 करोड़ रुपए इनकम है तो आप यू आर पेइंग 2 लाख, 20 लाख, समझ रहे हैं। तो वो तो अमाउंट तो Yes, sir. डिफरेंट है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रेट, टैक्स रेट इज द सेम, देखें, ये देखें टैक्स रेट, Okay. Yeah, like you're paying 20% of the tax from the amount. So that जी, then that is same. हाँ, तो ये हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, अदरवाइज यू विल नो हाउ इट इज सेम, 20% ऑफ 1 लाख Okay. इज डिफरेंट फ्रॉम 20% ऑफ 2 करोड़, ठीक है ना। Yeah. तो जस्ट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सेम, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्स रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yeah. Okay. अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। टैक्स रेट आ Okay. गया। अच्छा, अब देखिए एक और समझे, इसी से आपकी दूसरी बात समझ में आएगी। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, कि यानी कि आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और आपकी टैक्स रेट बढ़ते जाएगा, ठीक है। अच्छा, Okay. द Okay. एवरेज ऑफ टैक्सेशन विल देयरफॉर बी लोअर देन द मार्जिन, ये तो खैर उसकी बात है। तो जाहिर है पेड टैक्स इन इंक्रीज, पेड टैक्स इनकी टोटल टैक्स पेड इंक्रीज का बेसिकली मतलब क्या हुआ, कि आपका जो है वो, आपकी वो देखेंगे, देखें राइस इन द प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल टैक्स इज पेड, एक्चुअली द परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए तक तो अगर 20%, अगर 2 लाख है तो आपकी 25%, अगर 4 लाख है तो 30%, 40%, एक्चुअली टैक्स रेट विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है, विल बी इंक्रीजिंग इन परसेंटेज, क्लियर। Yes, sir. अच्छा, रिग्रेसिव की बिल्कुल अपोजिट है, आपकी इनकम बढ़ जाएगा, टैक्स कम पे करेंगे, कितनी Okay. अजीब सा लग रहा है, ऐसा Okay. कैसे हो सकता है ऐसा तो हो नहीं सकता कि Yes. इनकम बढ़ जाए टैक्स पे करे, ऐसा होता है। ये होता है आपके इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, याद रखिएगा। Okay. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मिसाल के तौर पर अभी से आपको एक मिसाल दी मैंने आपको, कि आपकी 10 लाख रुपए इनकम है, मेरी 1 लाख रुपए इनकम है, हम दोनों जाते हैं और जाके जो है ना वो एक मैं जाके एक पिज्जा, आप भी जाके पिज्जा लेती हैं, सपोज करें पिज्जा 1000 रुपीज का है, ठीक है। तो Mm-hmm. अब मैं जो जाके, तो मुझे जो जो 1000 रुपए का पिज्जा है उसमें 100 रुपए टैक्स है, ठीक है। तो आप जब पिज्जा लेंगे, तो आप अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए, मेरी 1 लाख रुपए है, तो आप जो आपका पिज्जा कितने का देगा वो, आपको कितने का देगा, मुझे कितने का देगा,
क्या ख्याल है? सॉरी सर। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी 10 लाख रुपए इनकम है और मेरी Yes, sir. 1 लाख रुपए इनकम है, हम दोनों किसी पिज्जा शॉप पे जाते हैं और पिज्जा ऑर्डर करते हैं, पिज्जा 1000 का है, हाँ। तो ये बताइए आपको कितने का देगा, मुझे कितने का देगा वो पिज्जा? सर 1000 का ही देगा। हाँ, दोनों डिफरेंस तो होगा ही नहीं, तो पूछेगा आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम के साथ थोड़ी Yes, बढ़ा sir. देगा वो, ठीक है? तो इसका क्या मतलब Yes, sir. हुआ कि मैं भी 100 रुपए टैक्स पे आप भी 100 रुपए टैक्स पे कर रही हैं, लेकिन व्हेन इट इज 100 डिवाइड बाय 1 लाख, उसकी परसेंटेज निकालने तो कुछ और आएगी, 100 डिवाइड बाय 10 लाख उसकी परसेंटेज और आएगी। 60%. Yes, तो sir. कम किसकी आएगी परसेंटेज, मेरी या आपकी? सर जिसकी कम होगी पे जिसकी कम पे होगी उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, याद रखिएगा। ज्यादा होगी। ये Yes, आपको sir. अजीब सा तो नहीं लग रहा आपको? सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट व्हेन आई मैं रीड इट आई थिंक आई मैं आपको बता एक मिनट बताता हूँ, कैलकुलेटर का आपको भी शो करता हूँ आपको, आपकी समझ में आ जाएगा। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें, वरना कंफ्यूजन ना हो जाए। अच्छा, अब मैं अगर शेयर करूँ आपको कैलकुलेटर नजर आ रहा है आपको? देखें, यस सर, यस सर। अब देखें यहाँ पे आपके पास 100 है और डिवाइड बाय 100,000, 1 लाख यही होता है ना, कितना आ गया? ये आ यस सर। गया, मल्टीप्लाई बाय 100, 0.01 100 तो कितना आया है? 0.1 आया। 0.1 यस सर। ये आपका टैक्स पे हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अगर हम इसको अगर उनको वही इसी 100 को अगर डिवाइड करें 1 मिलियन से, जैसे 10 लाख मैंने बोला आपको, ठीक है, 10 लाख हो गया। अब देखिए अमाउंट कितना आ रहा है, 0.001 और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी आप कर दें तो कितना आएगा? ठीक है, 0.01 अच्छा वो कितना था? 0.1 जी, तो ये कम है ना, यानी इनकम जितनी बढ़ती यस सर, जाएगी उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक ओके। है? आप खुद सोचे ना, आप 1 लाख का जो 100 रुपए दे रही हैं और 10 लाख में 100 रुपए दे रही हैं, तो जाहिर है कम होगा ना, कम परसेंटेज दे कम रही है ना। होगा या तो सर दिस इज जिसकी ज्यादा पे होगी उसका कम होगा टैक्स पे। जी 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 बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड रेग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स। समझ में आ गई बात? यस सर। चलें, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल एंड करते हैं क्लास को, इंशाल्लाह अगली क्लास में चल मंडे को आपकी से 10 बजे इंशाल्लाह, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वेलकम, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।